Hello dear kids, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I'm Vandana and we are doing book 6. This is your English reader book and the name of your book is Language Odyssey, our 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to do chapter number 2 of your book and the name of the chapter is Who is to blame? किसे blame किया जाए? So let's read what's in this chapter. So this lesson is a play in which a young fisherman was sitting on the bank of a river. So ये जो lesson है ये एक play form में है जिसमें एक young fisherman है जो कहाँ पे बैठा है? Bank of a river means river के किनारे बैठा है. Sharpening his knife on a stone. अपने नाइफ को वो शार्प कर रहा है एक स्टोन पे घिस घिस के. Then what interesting events happen one after the other. Let's read out. So अब उसके बाद अब वो शार्प तो कर रहा था पर क्या क्या चीजें हुई? Let's see. So here whenever we start with the play or a skit, so first we introduce the characters. So characters in the play are Ching Tong, our fisherman, old woman, his mother, prawn, snake, elephant, wood apple tree, boar, boulder, cock, plantain tree, chef toad, ant leader, and bat. So let's start with the chapter. So this is the first scene, and here what happens here? A small hilltop village in Myanmar. So this is the story of Myanmar and we are going to learn about a village over there. So Myanmar का एक village था. A river passes through this village. So यहाँ से एक river pass on होती है. A young fisherman is sitting on the bank of this river, sharpening his knife on the stone. So एक यहाँ पे छोटा सा लड़का है जो young fisherman है, अभी वो fishing सीख रहा है. तो उसने क्या किया? वो अपनी knife को एक चट्टान पे घिस घिस के क्लीन कराई है. You can see a small hut can be seen at some distance to the left. So boy के left side में एक छोटा सा hut है जो हमें दिखाई दे सकता है. A path leading to the thick forest is present on the right. और boy के जो right side है वहाँ पे क्या है? एक रास्ता है जो forest की तरफ जाता है. So this is the location. Let's start with the play. So first this is Chim Chong. This is the boy happily to himself. So the boy is very happy. Oh, now it's getting sharp. Just a few strokes more. And then ouch, ouch, what was that? So अभी जो है ये बच्चा बहुत हैप्पी है. उसने बोला वाओ अब तो मेरी आज ये नाइफ एकदम शार्प हो जाएगी. बस एक दो स्ट्रोक और मारने, कुछ और स्ट्रोक्स और मारने हैं, उसके बाद मेरी नाइफ एकदम शार्प हो जाएगी. और अचानक से बोलते बोलते क्या होता है? उसे किसी चीज ने बहुत ज्यादा परेशान किया जिसकी वजह से उसने बोला आउच. व्हाट वाज दैट? क्या था वो? ही इज बिटन ऑन हिज लेग बाय अ प्रॉन. सो उसके पैर की उंगली में एक प्रॉन ने उसे बाइट कर लिया, काट लिया. हु इज irritated by the sound of the knife being sharpened on the stone. So वो जो प्रॉन था जैसे उसने सुना उस लड़के को बहुत ऐसे वो जब अपनी नाइफ को शार्प करा था तो उससे आवाज जो क्रिएट होती थी उससे वो प्रॉन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा था. सो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करने के बाद, इरिटेटेड फील करने के बाद उस प्रॉन ने उस लड़के के पैर में काट लिया. The knife flies out of his hand and hit the trunk of a wood apple tree. So उस लड़के के हाथ से वो नाइफ छूटता है. जैसे उसके पैर में उस प्रॉन ने काटा तो आउच करके उस लड़के ने उस नाइफ को छोड़ दिया. और नाइफ कहाँ चला गया? It hit a wood apple tree. एक wood apple tree को वो नाइफ जाके लग गया. And cutting it deep. और उसे जैसे वो नाइफ लगा तो वो ट्री जो है कट हो गया, टूट गया. The tree is angry with the fisherman. अब जो ट्री था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है फिशरमैन से कि इस फिशरमैन की वजह से मैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. Now
the wood apple tree. Oh, that's not fair. Fisherman, take that for hitting me. So अब जो है वुड एप्पल ट्री बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसने फिशरमैन से कहा कि अच्छा तुमने मुझे नाइफ से मारा, चलो ये लो, तुम्हें भी मैं एक क्या देता हूँ, वुड एप्पल देता हूँ एज अ रिवॉर्ड। और उसने उस ट्री ने भी अपने पेड़ पे से एक वुड एप्पल को तोड़ के उस लड़के के ऊपर फेंक दिया। सो उसने रिवॉर्ड के रूप में एक वुड एप्पल दिया। डू यू नो व्हाट इज वुड एप्पल? सो वुड एप्पल इज लाइक यू से बेल के जो बेल पत्थर जो होता है, जो जिसके पत्तों को हम शिव जी को चढ़ाते हैं, सो बेल पत्थर इज कॉल्ड वुड एप्पल। सो उसका जो उसने अपना एक बेल तोड़ के उस लड़के के ऊपर फेंका। Saying so, the tree dropped the wood apple to hit Ching Chong. So उस बच्चे को मारने के लिए, उस फिशरमैन को मारने के लिए उस वुड एप्पल ट्री ने एक वुड एप्पल को फेंका। He is still jumping around because of the prawn's bite. So बच्चे उस फिशरमैन के पैर में, क्योंकि इस प्रॉन ने काट लिया था, तो उस बच्चे ने अपना एक पैर पकड़ के वो अपनी जगह पे जंप करने लगा। So because the boy was jumping, so जो भी निशाना था वुड एप्पल का वो कहाँ जाके गया? The fruit had a cock instead. तो बच्चे की जगह वो वुड एप्पल जाके एक कॉक को लग गया। The cock is shocked. कॉक shocked हो गया। Cock, how dare you? You are great bully. You know that I cannot match your size and strength, so you hit me. Wait, I will get even with you. So अब जो है कॉक को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि भाई उसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसके ऊपर एक बड़ा सा बेल का पत्थर पड़ा। So अब जो है कॉक गुस्से में आ गया। उसने बोला कि तुम मुझ पे निशाना क्यों लगा रहे हो? मैं तो ना तुम्हारे साइज का हूँ और ना ही तुम्हारे स्ट्रेंथ का हूँ, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझे मारा। So, अब उसने क्या कहा? Wait, I will get even with you. अब उसने कहा रुको, अभी मैं भी तुमसे बदला लूंगा। So what it did? The cock scratched up a nest of busy ants. तो कॉक ने वहां पे कुछ ants का नेस्ट था, ant hill था, जिसको उसने अपने पंजों से स्क्रैच कर दिया, thinking that they would crawl up all over the tree. क्या सोच के कि अगर वो उसके सारे घर को खराब कर देगा तो क्या होगा, वो सारी एंट्स जो पेड़ पे चढ़ जाएंगी और पेड़ से बदला वो ले लेगा ना। जैसे उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, एंट लीडर, जो एंट्स का जो लीडर था, ओके सो यू वांट टू हैव फन डोंट यू कॉकी? तो अब कॉक को उसने बोला, कॉकी, अच्छा तो तुम्हें मजाक करना हमारे साथ, तुम हमारे साथ मस्ती करना चाहते हो? Well, here goes to the other ants. You know what you have to do. So अब जो है आंट का जो लीडर है उसने बोला कि चलो, उसने सारे आंट्स को आदेश दिया कि चलो अब हमें बदला लेना है। When the ants get the command, they crawl forward and attack a passing snake instead. So जैसे ants को जो है आदेश मिला कि चलो यहाँ से हमें जो है क्या करना है, आक्रमण करना है। तो जैसे वो जा रहे थे तो अचानक से उनके सामने एक स्नेक आ गया और जिस पे उन्होंने अटैक कर दिया। The snake gets bitten all over. और स्नेक की पूरी बॉडी पे उन ants ने क्या किया, अटैक कर दिया, उन्हें काट लिया। Now the snake was angry. अब क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, अब स्नेक को गुस्सा आ गया। Don't pick on me. मुझ पे आप मुझे मत चुपाओ, मुझे मत काटो। You cheats, let me go. मुझे जाने दो। The snake wriggles free, rushes towards the forest and bites a boar on his leg. So snake जो है वहां से अपने आप को बचाते बचाते वहां से भागा और गुस्से में था, क्योंकि वो तो अब गुस्से में उसने क्या किया, इसके सामने जो भी पहला चीज आया उसे उसने काट लिया। तो उसके सामने कौन आया, एक वाइल्ड बोर आया। बोर इज अ काइंड ऑफ जंगली सुअर। सो वो आया उसके सामने, सो उसने जो है उसके लेग में काट लिया, स्नेक ने उस बोर के लेग में काट लिया।
बोर. What on the earth did you do that for? सब बोर पूछता है स्नेक से कि भाई तुमने मुझे क्यों काटा, मेरी क्या गलती है. स्नेक, you were the first and the easiest target for me. So स्नेक ने बोला कि तुम जो जब मैं यहाँ से जा रहा था गुस्से में तो तुम मेरे सामने आ गए और तुम पहले इंसान थे या वो थिंग थे जो मेरे सामने आए, इसलिए मैंने तुम्हें काट लिया और तुम बहुत ही इजीली मेरे सामने आ गए, इसलिए मैंने तुम्हें काटा. अब बोर क्या कहता है? Well, I can't bite you back. बोर ने कहा मैं तुम्हें वापस से काट नहीं सकता. I will have to find some medicinal roots. So चलो मैं कुछ medicinal roots को, कुछ medicinal plants को लेता हूँ और उससे अपने पाँव पे लगाता हूँ. So he rushes off and furiously digs up the roots of a plantain tree. So वहाँ से बोर जाता है और कुछ plantain trees उसे दिखते हैं, उसको उसकी सारी मिट्टी को निकाल के उसकी जड़ को निकालता है जिससे वो अपने घाव पे लगाता है. This causes the tree to fall. अब क्योंकि ट्री की सारी जड़ बाहर आ चुकी थी तो क्या हुआ, वो पेड़ जो है नीचे गिर गया. A bat sleeping on the tree is disturbed when it falls. सब उस पेड़ पे एक बैट सो रहा था, मीन्स एक चमगादड़ सो रहा था. अब वो जैसे ही ट्री गिरा तो बैट भी डिस्टर्ब हो गया. He flies about blindly, क्योंकि दिन का समय था and as you know कि जो बैट्स होते हैं उन्हें दिन में नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ रात में दिखाई देता है उन्हें. So अब वो क्योंकि उसे दिन का टाइम था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तो वो कहीं भी फ्लाई करने लगा. फ्लाई करते करते क्या हुआ, and accidentally rushes into the ear of an elephant drinking water from the river. So अचानक से उड़ते उड़ते क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं तो वो एक एलिफेंट के कान के अंदर घुस गया और वो एलिफेंट क्या कर रहा था, रिवर में से वो पानी पी रहा था. बैट, oh goodness, where am I? मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, इतना अंधेरा है यहाँ पे, अब उसे अंधेरे में सब दिखाई दे, कहाँ पहुंच गया हूँ. It is all dark and hairy and a bit smelly too. So बैट कहता है कि यहाँ तो बहुत अंधेरा है और यहाँ पे खूब सारे बादल हैं. hairy है मीन्स बाल बहुत ज्यादा है यहाँ पे, and यहाँ पे बहुत ही स्मेल आ रही है, स्मेली है. But I might as well have a bite while food is so close. So बैट ने कहा कि क्योंकि मैं फूड के इतने पास में हूँ तो चलो मैं फूड को जरा सा खा ही लेता हूँ. Saying this, the bat bites the elephant. So ये बोलते ही बैट ने क्या किया, एलिफेंट के ईयर के अंदर उसने कट कर लिया, काट लिया. The elephant trumps wildly in pain. So अब एलिफेंट जो है गुस्से में था और गुस्से में उसने जो है इधर उधर जो वो चिल्लाने लगा. She raises her front leg and kicks a boulder lying nearby. So नदी में एक चट्टान पड़ी थी, एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था. So उसने अपने आगे के पैर उठाए और उस बोल्डर पे मारा. तो जैसे उसने मारा क्या हुआ, the boulder goes crashing into the hut. अब वो चट्टान का टुकड़ा उठा और जो हमने लेफ्ट साइड में, बॉय के लेफ्ट साइड में जो हट था वहां पे जाके उसने वो टकरा गया. Breaking one of its wall, और उस घर का एक वॉल जो है, एक दीवार जो है टूट गई. An old woman who lives in the hut sees the broken wall and shouts at the boulder. So जैसे इस वुमन ने देखा कि मेरे घर का जो है वॉल जो है टूट गई तो गुस्से में उसने देखा कि किसने तोड़ा, उसने देखा एक बड़े से पत्थर के टुकड़े ने उसके घर के वॉल को तोड़ दिया. वो गुस्से में आ गई, वो चिल्लाने लगी. क्या बोला उसने, ओल्ड वुमन ने क्या बोला, You stupid boulder, look at what you have done. Now you pay me to rebuild my house or else. तब उस ओल्ड वुमन को बहुत गुस्सा है. उसने बोला कि तुमने जो है मेरे घर को तोड़ दिया है, अब तुम मुझे इसके बनाने में हेल्प करोगे, मुझे इसकी जो है पेमेंट करोगे. बोल्डर से
What? You want me to pay you? तुम चाहते हो मैं तुम्हें पे करूं? Why should I? मैं क्यों करूं? I didn't want to break your wall. मैं तुम्हारे वॉल को ब्रेक नहीं करना चाहता था. I was minding my own business. मैं तो अपना काम कर रहा था. It was the elephant who kicked me before I could say anything. So ये तो गलती किसकी है? उस एलिफेंट की है जिसने मुझे धक्का मारा, जिसने मुझे किक किया, जिससे पहले मैं उसे कुछ कह पाता उससे पहले उसने मुझे किक कर दिया. Old woman. Is that so? क्या यही बात है? All right. I will get hold of that nasty elephant. तो चलो मैं उस एलिफेंट को पकड़ती हूँ, उसे मजा चुपता हूँ. She hurried off. Meanwhile, the bat had somehow managed to escape from the elephant's ear. So इतनी देर में जो बैट था एलिफेंट की ईयर में वो वहां से निकल जाता है. The elephant is calm now. और वो शांत हो जाता है क्योंकि अब उसके कान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे परेशान कर रहा है. The woman comes at her from behind. So वो woman आती है उस एलिफेंट के पास. So you are enjoying yourself. जम्बोलीना. So अब जो woman ने कहा कि जम्बोलीना तुम अब बहुत enjoy कर रही हो मेरे घर को तोड़ के. So elephant ने क्या बोला? Oh, you startled me. तुमने मुझे डरा दिया. Startle means पीछे से डरा देना. So you startled me. Old woman ने क्या कहा? You will be more startled when I tell you that you have to pay me to rebuild my house. So अब मैं अच्छा तो तुम अभी डर गए हो. चलो अभी मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, तुम और ज्यादा डर जाओगे. और वो क्या बात है कि तुम्हें मेरे घर को बनाने में मेरी हेल्प करनी है. You have to help me rebuild my house. Elephant. Don't bother me. मुझे परेशान मत करो. I've already been bothered enough by that bat sleeping over there in that tree. So elephant ने कहा कि मैं पहले से इतना परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो. वो जो बैट वहां पेड़ पे सो रहा है उसने मुझे ऑलरेडी परेशान कर रखा है. He bit me, so I kicked the boulder. उसने मुझे यहाँ कान के अंदर काटा, इसलिए मैंने उस boulder को kick किया. The bat hears the accusation and shouts out loud from his resting place in the tree. So अब जो बैट ने ये सारी बातें सुनी, वो उठता है वहां से और वो चिल्लाने लग जाता है तेजी से अपनी जगह से. बैट ने क्या बोला? How is it my fault? ये मेरी गलती नहीं है. I was sleeping. And then the plantain tree suddenly decided to throw me out of for no reason. तो उसने कहा मेरी गलती नहीं है, मैं तो सो रहा था. कहाँ पे? इस plantain tree पे. अचानक से इस plantain tree ने मुझे अपने ऊपर से नीचे गिरा दिया. कोई रीजन नहीं था. I can't see by the day. सबको पता है कि मैं दिन में नहीं देख सकता हूँ. Everybody knows that. Go and get your payment from the plantain tree. So woman से उस बैट ने कहा कि जाओ अपना पेमेंट किससे लो? उस ट्री से लो जिसके ऊपर मैं सो रहा था. Old woman. Oh, I will. ठीक है मैं जाती हूँ. She goes to the plantain tree which is lying on the ground and what's your excuse? अब woman ने कहा उस plantain tree के पास जाती है जो जमीन पे लेटा हुआ है, उससे पूछती है कि अब तुम्हारी क्या एक्सक्यूज है, तुम क्या एक्सक्यूज देना चाहते हो? The plantain tree says, "Can't you see my excuse?" Plantain tree ने कहा, क्या तुम देख नहीं पा रही हो मैं किस कंडीशन में यहाँ पे हूँ? Go and get the boar. जाओ उस बोर को पकड़ के लाओ. I have already had enough trouble for a lifetime. अब मैं पूरे लाइफ टाइम ऐसे ही पड़ा रहूंगा. तो मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, अब मुझे और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना. जाओ उस जंगली बोर को, वाइल्ड बोर को पकड़ के लाओ. The old woman spies the boar nursing his bitten legs. So अब उसने क्या देखा? चुपके से वो woman जाती देखती है कि वो बोर क्या कर रहा है. He was nursing his bitten leg. अपने पैर में वो पट्टी बांध रहा है, दवाई लगा रहा है. On seeing the angry woman, he tries to run. अब जैसे उस woman को देखा उस बोर ने तो वो वहां से भागने लग गया. Old woman. Stop there, boar. You have to pay for the damage you have done to my house, else the whole village will. So अब उस old woman ने कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ और जो भी मेरे घर का नुकसान हुआ है, you will have to
पे दैट, तुम्हें उसे पे करना होगा, नहीं तो जब पूरा विलेज है ना तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हें पता है। बोर ने क्या बोला, ओह नो, इट वॉजंट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं थी। द स्नेक बिट माई लेग, स्नेक ने मेरे पैर में काट लिया था। इफ इट वर नॉट फॉर द स्नेक योर हाउस वुड बी फाइन। सो अगर स्नेक ने मुझे नहीं काटा होता तो तुम्हारा घर ठीक रहता। गो एंड गेट द स्नेक, जाओ स्नेक को पकड़ो। She rushes off to find the snake. When she finds him, she lifts him by his tail. So अब जो लेडी थी, ओल्ड वुमेन थी, वो जाती है भाग के स्नेक के पास और देखती है, और क्या देखा उसने उसे उठाया by its tail, उसके टेल से पकड़ के उसे उठाया। स्नेक, oh please let me go, what I have done to you। अब स्नेक ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम मुझे पकड़ रही हो। ओल्ड वुमेन, you have broken my house, that is what you have done। so यही तुमने किया है, तुमने मेरे घर तोड़ा है। now pay for the damage else you will become a handbag। so तुम डैमेज के लिए पे करो, नहीं तो मैं तुम्हें बेच दूंगी और तुम्हारी स्किन से हैंडबैग बना दिया जाएगा। so now the snake is frightened। now the snake says, sorry, some ants stung me, ask them to pay। so अब बहुत ही डर के मारे स्नेक ने बोला कि मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, सॉरी, कुछ एंट्स ने मुझे काट लिया था जिसकी वजह से मैंने ये सब चीज हुआ। तो जाइए आप उन एंट्स से क्या मांगिए, उनसे आप अपना पेमेंट मांगिए। She lets the snake go and he wriggles away to save his skin। The old woman finds the anthill and knocks on it। so उस लेडी ने और उस ओल्ड वुमन ने उस स्नेक को छोड़ा और स्नेक जो है घूमता फिरता अपने घर चला गया, क्योंकि उसे अपनी स्किन को बचाना। so अब जो वुमन थी उसने क्या किया, वो एंट हिल के पास गई और उसने नॉक किया। ओल्ड वुमन, come out you mini beast, I have a quarrel with you। सब उस ओल्ड वुमन ने उस एंट को बोला कि बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ लड़ाई झगड़ा करना है। एंट लीडर, and why do you have a quarrel with us, what have we done to you। so एंट लीडर ने कहा कि आपको हमसे झगड़ा क्यों करना है, हमने क्या किया तुम्हारा। ओल्ड वुमन, you have destroyed my house, तुमने मेरा घर तोड़ दिया है। you must pay for the damage or else I will bring ant eater here। तो चलो मेरे घर जो तुमने तोड़ा है उसकी पेमेंट करो, नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एंट ईटर लेके आऊंगी। किसे लेके आऊंगी, एंट ईटर, जो एंट्स को खा जाता है, तुम सबको खा जाएगा वो। एंट के लीडर ने क्या कहा, फर्स्ट आस्क मिस्टर कॉक सिटिंग देयर why he destroyed our house। so ants ने कहा कि पहले जाओ उस कॉक से पूछ के आओ जिसने हमारे घर को तोड़ा है, उसने हमारा घर क्यों तोड़ा। the cock started fluttering his feathers, अब अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा कॉक। तो कॉक ने अपने पंखों को फड़फड़ाया on hearing the ants accusation। so ants ने जो भी बातें बोली उसको सुन के जो कॉक था वो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और बोला, don't blame me, first ask that monster tree why it tried to kill me। so उस कॉक ने कहा, मुझे ब्लेम मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है। किसे ब्लेम करो, उस मॉन्स्टर ट्री, उस बड़े से ट्री को ब्लेम करो जो मेरे ऊपर गिर गया, मुझे मारना चाहता था। The tree joined in the conversation। अब ट्री जो है वापस से उस कॉन्वर्सेशन में आ गया, उस वाद विवाद में आ गया। Wood apple tree, wood apple tree ने क्या बोला, wait a minute, that was not supposed to hit you, it was meant for that careless man who cut me with his knife। तो एप्पल ट्री ने कहा, वुड एप्पल ट्री ने कहा कि वो जो मैंने वुड एप्पल फेंका था वो तुम्हारे लिए नहीं था,
वो किसके लिए था? उस मैन के लिए था। किसके लिए था? उस केयरलेस मैन के लिए था जिसने मेरे ऊपर चाकू फेंका और जिससे मैं 2 पीस में कट गया। The woman sees the man and finds that it was her own son, Chim Chong. तो उसने क्या देखा? जैसे उस मैन की तरफ देखा तो देखा कि वो कोई और नहीं, उसका खुद का बेटा चिम चोंग। Son, you will have to rebuild the house. तो लेडी ने कहा कि चलो बेटा अब आपको हमारा घर बनवाना पड़ेगा वापस से। चिम चोंग से yes of course mother, but let me catch that mean prawn. उस mean prawn को जिसकी वजह से सब कुछ हुआ उसे मुझे पहले पकड़ने दो। That little thing started all this trouble. सिर्फ उसकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम है हुई। Chim Chong throws a small net into the river and catches the prawn. Meanwhile, all the other creatures gather around the fisherman and the old woman. They turn the prawn angry. So अब जो है उन्होंने डिसाइड किया कि पहले उस प्रॉन को पकड़ेंगे। So उसने नेट डाला, लिटिल फिशरमैन ने नेट डाला और उसमें उस प्रॉन को पकड़ा। And now what Chim Chong is saying? You deserve to die for all the mischief you have caused. So तुमने जो भी आज गलतियां की हो उसके लिए तुम्हें आज मरना पड़ेगा। Call शेफ टोड। शेफ टोड को बुलाओ जो हमारे शेफ हैं। He knows how to make delicious prawn soup. उन्हें पता है prawn soup कैसे बनाना चाहिए। So he will get the soup ready. जल्दी से सूप बनाओ। Chef Toad sets up the pot and takes the prawn from Chim Chong. So अब Chef Toad अपने काम पे लग गया सूप बनाने के। तो उसने जो prawn लिया Chim Chong से और सूप बनाना स्टार्ट किया। Everyone leaves Chef Toad so that he can make the soup. So सब Chef Toad के पास से चले गए ताकि वो आराम से सूप बना सके। After a while the soup is almost ready. थोड़ी देर बाद सूप जो है रेडी हो गया। Chef Toad, come my lovely, let me test how tender you are. Means कितनी soft हो तुम, चलो आओ let's me check. तो उसने prawn से बोला। Saying this, Chef Toad bites off a small piece of the prawn. So prawn का एक छोटा सा पीस Chef Toad ने खा लिया। One piece becomes 2 and very soon he finishes off all the prawn in the soup. So धीरे धीरे एक पीस खाया, फिर दूसरा पीस खाया, फिर धीरे धीरे करके उसने पूरा वो जो प्रॉन था उसे खा लिया। सूप में अब कोई भी प्रॉन नहीं बचा था। When the others arrived to have the soup, अब बाकी जानवर आ गए सूप पीने के लिए। They are disappointed that the soup doesn't taste as of prawn at all. So जब सबने टेस्ट किया उस सूप को तो उन्हें लगा कि ये इसमें तो बिल्कुल भी प्रॉन है ही नहीं, इसका तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा वैसा। बट उप्स सॉरी। अब जैसे सबने ये बोला तो बट मीन्स डकार आ गई किसको? शेफ टोड को। और उसने क्या बोला? सॉरी। The others see what the crafty toad has done. तो सबको पता चल गया कि प्रॉन कहाँ गया? सूप में तो प्रॉन है ही नहीं, कहाँ गया? वो टोड खा गया। He runs and everyone chases him into the river. So अब जो है सबने देख लिया कि ओके ये प्रॉन तो गायब है सूप से। तो सब जो है शेफ टोड के पीछे भागने लगते हैं और वो खुद भागने लगता है कहाँ तक? रिवर के अंदर। So children, in this chapter we have learned perspective of a young boy. बॉय के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें हुई एंड लाइफ ऑफ फॉरेस्ट। नाउ लेट्स डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ प्रॉन बाइट्स ऑन चिम चोंग्स। प्रॉन ने कहाँ पे काटा था? सो द प्रॉन बाइट्स ऑन चिम चोंग्स हैंड, बैक और लेग। सो लेग इज द करेक्ट आंसर हियर। द ट्री इज एंग्री विद द ट्री किससे गुस्सा था? फिशरमैन, ओल्ड वुमेन, बैट और none of these. So the tree was angry with the fisherman. So like this children, complete the rest of the exercise. It's your homework. Now let's come to fill in the blanks. The knife flies out of his hand and hits the trunk of a dash tree. So जो knife था वो
उस बॉय के हैंड से निकल के कहाँ पे जाता है, कौन से पेड़ पे, wood apple tree. So the knife goes there. Write it down. Next, the cock dash up the nest to buy ants. So क्या किया था कॉक ने, जो नेस्ट था, जो बिजी एंट्स उसके नेस्ट को क्या किया था, स्क्रैच. The dash bites the elephant inside her dash. So here the dash bites, the bat bites the elephant inside her ear. So like this, children, complete the rest of the exercise. Now let's come to question and answers. Who bit Tim Chong and why? So here the prawn bit Tim Chong because he was feeling irritated of the noise that was coming out when Tim Chong was sharpening his knife. How did the bat take advantage of the situation? So when the bat went inside the ear of the elephant, the area there was very dark and hairy, and he was getting some foul smell also. So he took the advantage as he tried to the bat tried to bit the elephant inside its ear. So like this, it took the advantage of the situation. So like this, children, complete the rest of the exercise. It's your homework. Now, can't you see my excuse? Who said these words and to whom? So here, children, complete the exercise here. And this was said by the plantain tree to the woman. So the plantain tree told the woman that, can't you see my excuse? And what did the speaker mean by saying this, that the excuse could be seen? So children, complete the given exercise. It's your homework. So children, with this we have completed the chapter, and I hope that you have understood it. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay rated.